Hello friends, welcome to Natavatkar E-Classes. Myself K.R. Raghuvanshi from Eklavya Vidyalaya, Nandurbar. Today we are going to study chapter number 2, Periodic Classification of Element of class 10, belong to Science and Technology part first. So we start with, can you recall? Student, you already know what are the types of matter. So student, the types of matters are solid, liquid, gas and plasma. Now we consider second question. The second question is, what are the types of elements? So the types of elements are metals, non-metals and metalloids. Now we consider third question. What are the smallest particle of matter called? So you know that the smallest particle of matter called atom. Now next question. What is the difference between the molecule of element and compound? So student, element contain only one type of atom in the free state or a combined form, and element cannot be decomposed into simple substance by any chemical reaction. For example, copper, oxygen, sulfur. This is the examples of elements. And another side, a compound is produced by chemical combination of two or more elements. For example, C plus O2 form CO2. So the carbon dioxide, it is a compound. And student, the constituent of a compound can be separated by chemical process. For example, salt, that means NaCl, water, that means H2O, and sugar, that means C6H12O6. Student, we have learned in the earlier class that all the atoms of element are of only one type. And student, today 118 elements are known into the scientific world. However, around year 1800 years, only about 30 elements are known. More number of elements were discovered. More and more information about the properties of this element was gathered. जैसे जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या होती गई, मिक्स होती गई, तब ऐसी सिचुएशंस में साइंटिस्ट को ये जरूरी था कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करें. आप कभी ना कभी किसी सुपरमार्केट में या लाइब्रेरी के अंदर आपने विजिट की होगी. जब भी हम सुपरमार्केट में जाते हैं, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहां हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे हर चीज एक प्रॉपर वे में अरेंज की होती है. हमको वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, हर चीज इजीली हमको वहां पे अवेलेबल हो जाती है. बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से हम सारी की सारी चीजों को क्या करते हैं, तो अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो वहां पे फैकल्टी वाइज, फॉर एग्जाम्पल है साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह से बुक्स को अरेंज किया होता है. या फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, या शायद पोएट्री की बुक्स है, स्टोरीज की बुक है, नोवेल्स है, इस तरह से बुक्स अरेंज की होती है. हमको जो बुक्स चाहिए हम उस कॉलम में जाते हैं, हमको इजीली बुक क्या होती है, फाइंड आउट होती है. सेम पैटर्न हमको कहाँ चाहिए था, तो एलिमेंट में. जब मैनी एटम और मैनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, साइंटिस्ट एक प्रॉपर वे का अरेंजमेंट करने लगे कि प्रॉपरली एलिमेंट्स को हम अरेंज करें ताकि हम उनको प्रॉपर क्लासिफाई करके उनकी इजी स्टडी कर सके. अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बहुत सारे साइंटिस्ट आए. एंड स्टूडेंट, यू नो दैट इन अर्लियर classification of element divided into two groups. The groups are metals and non-metal. And later on, another third group are included, or this is called a metalloid. So, first of all, we study the Dobereiner tribes. So, we start Dobereiner tribes. So, student, we continue our chapter and start the heading Dobereiner tribes.
Students, in the year 1870, a German scientist, Dobereiner, suggests that properties of elements are related to their atomic mass. And students, he made group of 3 elements, each having similar chemical property and call them tribes. For example, lithium, sodium, potassium and call them tribes. And student, he arranged the 3 elements in a tribe in an increasing order of their atomic mass and show that the mass of middle element approximate equal to the another 2 element. For example, if we consider a first tribes, lithium, sodium, potassium, Dobereiner arranged increasing order of their atomic mass. So mass of lithium is 6.9, mass of potassium is 39.1. He observed that if we find the mean A plus C, if this is the A, this is the C. So mass of A is 6.9, mass of C is 39.1. If we observe the mean, we get 23. So this is the atomic mass of middle element. He arranged total 3 tribes. Another is calcium, strontium, barium. Same rules are in these tribes. Mass of calcium is 40.1. Mass of barium is 137.3. If we find the mean, 40.1 plus 137.3 divided by 2, we get 88.7, and this is the atomic mass of strontium. Another example we consider chlorine, bromine, iodine. Same rules are followed. So the mean of chlorine and iodine, we get atomic mass of bromine. But student, all the known elements could not be explained by Dobereiner tribe. So this is the limitations of Dobereiner tribe. So now we discuss about Newland-Octavius law. So student, now we discuss about Newland law of Octavius. So student, in the year 1866, English scientist John Newland correlated the atomic mass of element to their property in a different way. Student, Newland arranged the element known at that time in increasing order of their atomic mass. न्यूलैंड ने भी जब तक जितने भी एलिमेंट नोन थे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया. एंड स्टूडेंट, इनकी ऑक्टेवियस में इन्होंने लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और लास्ट थोरियम पर एंड अप किया. एंड स्टूडेंट, ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज similar to those of the first. You know the Indian musical notes or Indian musical system. सा रे गा मा पा धा नी सा. इस सा रे गा मा पा धा नी सा में पहला और जो एट्थ है वो नोट कैसा है तो सेम है. That means न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया, ये फाउंड किया कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है. तो इन्होंने इसको क्या किया, अरेंज किया और पूरी की पूरी एक टेबल इन्होंने परफॉर्म की. अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें स्टूडेंट, तो दिस इज द न्यूलैंड ऑक्टेवियस लॉ. टोटल 56 बॉक्सेस इन्होंने बनाए और सारे के सारे 56 में जितने भी एलिमेंट तब तक नोन थे उनको फिट अप किया. यहाँ पे देखिए पहला कॉलम म्यूजिकल नोट्स एंड यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा. अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम कंसीडर करें लिथियम, लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट. इन सपोज वी कंसीडर देन 1 2 3 4 5 6 7 8. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमने डोबेराइनर ट्राइड्स में भी आपको ऑब्जर्व किया. यहाँ पे लिथियम जो एट्थ एलिमेंट है सोडियम है, उससे क्या कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो अप कर रहा है. तो म्यूजिकल नोट्स के बेस पर न्यूलैंड ने ये दिया लॉ ऑफ ऑक्टेवियस और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर है. बट स्टूडेंट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवियस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. नाउ हम वो लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, दिस लॉ was found to be applicable only up to calcium. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे टोटल 56 एलिमेंट यहाँ पे अरेंज है,
मगर इस लॉ को फॉलो करते हुए ए एलिमेंट ओनली कैल्शियम तक ये लॉ क्या है तो एप्लीकेबल है। अनदर जो एलिमेंट्स है वो इसमें मैच नहीं होती। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल को सब नोड्स के थ्रू कहां पे रख दिया था तो हैलोजेंस के साथ रख दिया था, जबकि सिमिलर आयरन मेटल है और इसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो ऑफ करता है जो नी नोड्स के कारण नॉन मेटल के साथ वहां पे रख दिया था। तो ये क्या थी इसकी लिमिटेशंस। अब यहाँ पे आपने पढ़ा डोबेराइनर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवेज। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल। So student, the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during the period of 1869 to 1872. Student, the most important steps in the classification of elements. Mendeleev considered the fundamental properties of element, namely atomic mass. He arranged total 63 elements known at that time in increasing order of their atomic mass. 63 elements तब तक known थे, उन्होंने उनको increasing order of atomic mass के according अपनी periodic table में arrange किया, and after that he transferred this into the periodic table of elements according to their physical and chemical properties. And student, Mendeleev found that the element with similar physical and chemical property repeat after a definite interval. Periodic means repeat after definite interval. Suppose we consider an example. For example, Monday. Suppose आज Monday है. Next Monday कब repeat होगा? After 7 days. Similarly, अगर हम जनवरी की बात करें तो नेक्स्ट जनवरी कब आएगा? आफ्टर 11 मंथ। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक डेफिनिट इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी हो रही है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सेम फिनोमेना को मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो एलिमेंट है उन पे अरेंज किया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडेलीव अरेंज a vertical column, call them groups, and horizontal row, call them periods. So this is the Mendeleev periodic table. You already see on the display the Mendeleev periodic table. The elements are arranged into increasing order of their atomic mass. Now we are discuss merits of Mendeleev periodic table. So we discuss Mendeleev periodic tables के merit. Hello student, now we discuss about merits of Mendeleev periodic table. Student, atomic mass of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास थे जो रिवाइज हो गए। फॉर एग्जांपल इन अर्लियर बेरिलियम का एटॉमिक मास ऑब्जर्व हुआ 14.9 जो बाद में किसमें चेंज हुआ 9.4, बट मेंडेलीव ने उनको उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर ऑलरेडी जो बेरिलियम है उसको बोरोन से पहले प्लेस किया। एंड द सेकंड मेरिट्स आर मेंडेलीव केप्ट वेकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट स्पेस रखी, कुछ खाली जगह रखी, जहां उन्होंने उस एलिमेंट को रखा जो जब तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने उनके एटॉमिक मास को प्रिडिक्शन किया था, एंड मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का भी प्रिडिक्शन करके रखा था कि यहाँ पे इतने एटॉमिक मास के इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वैसे एलिमेंट होंगे जो डिस्कवर होंगे। और इनको उन्होंने प्रॉपरली एक नाम भी दिया था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। एंड स्टूडेंट, नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टी वेयर also protected and later on those elements were discovered and named. बाद में एलिमेंट की डिस्कवरी भी हुई और इनको एक प्रॉपर नाम दिया गया, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, जो आप मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट मैच विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलीव। इन सभी की स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम की प्रॉपर्टी उनसे मैच हुई जो ऑलरेडी जो मेंडेलीव अपने प्रेडिक्शन में बता चुके थे। सो ड्यू टू दिस
success, all were convinced about the importance of Mendeleev periodic table and this method of classification was accepted immediately. आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल वहां पे दिख रहा है जहां पे मेंडेलीव ने प्रॉपर्टीज डिस्कवर की है, प्रॉपर्टीज का प्रेडिक्शन किया है इका एल्यूमिनियम जो बाद में जो एक्चुअल गैलियम है उससे वहां पे मैच किए। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास है 68, गैलियम का 69.7, डेंसिटी 5.9, वहां पे गैलियम की दी हुई है आप ऑब्जर्व कर सकते हो 5.94, मेल्टिंग पॉइंट लो यहाँ पे 30.2, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3, गैलियम का है GaCl3, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, वहां पे था आपको Ga2O3 एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ कोर्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हियर आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप कर सकते हो कि जो मेंडेलीव ने जिन एलिमेंट के लिए प्रेडिक्शन किया था, जो एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्शन करके रखे थे, जो खाली जगह रखी थी, वो पर्टिकुलर ऑब्जर्व भी हुई और वहां पे फिल अप किए गए। जो नेक्स्ट मेरिट्स है वो लास्ट मेरिट्स, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। हाउएवर नोबल गैस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon were discovered towards the end of 19th century, but Mendeleev created the zero group without disturbing Mendeleev periodic table, in which the noble gases were fitted very well. So this is the merits of Mendeleev periodic table. Now we are discuss about demerits of Mendeleev periodic table. So student, after merits कुछ demerits यहाँ पे ऑब्जर्व हुए। For example, the whole number of atomic mass of the element, for example, cobalt and nickel is the same. कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास था वो ऑलमोस्ट क्या आ गया, सेम हो गया। अब एटॉमिक मास सेम होने के कारण उनके सीक्वेंस में आप किसको पहले रखोगे, किसके बाद में, ये डिमेरिट सामने आया। नेक्स्ट डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो वो डिमेरिट्स था आइसोटॉप्स। स्टूडेंट, आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉरवर्ड द पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बहुत दिनों बाद आइसोटॉप्स ऑब्जर्व हुए या डिस्कवर हुए, जबकि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं रखा गया था। आइसोटॉप्स मींस आप ऑलरेडी नोन है, आइसोटॉप्स मींस द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब यहाँ आइसोटॉप्स का मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। अगर डिफरेंट मास नंबर आइसोटॉप्स का होगा, दैट मींस हम हाइड्रोजन को या फिर क्लोरीन को, जो भी आइसोटॉप्स है, उनको एक्चुअल में कहाँ रखेंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। थर्ड अगर हम बात करें तो व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर द यूनिफॉर्म। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को रखते हैं तो जो एटॉमिक मास में रखते वक्त वहां पे यूनिफॉर्म पैटर्न हमको नहीं मिल रहा था कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में है, किसके अकॉर्डिंग होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सो दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। और नेक्स्ट जो लास्ट आपका डिमेरिट्स है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विद हैलोजन एंड ग्रुप 7 एज वेल एज अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट। हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो ऑफ कर रहा था, हेलोजन से भी प्रॉपर्टी सिमिलर कर रहा था। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन को कहां प्लेसमेंट दिया जाए उसके बारे में मेंडेलीव ने कुछ भी आंसर्स नहीं दिए थे। सो अनदर साइड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल H2O formed with chlorine and oxygen on consider the above property, it is the difficult to decide the correct position of the hydrogen. तो डिमेरिट्स कौन कौन से थे, एक तो कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास था वो सेम था, उसके सीक्वेंस में प्रॉब्लम था। आइसोटॉप्स वो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनको कहां प्लेस करेंगे, वो एक प्रॉब्लम थी। तीसरा था एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते वक्त कोई भी यूनिफॉर्म पैटर्न वहां पे नहीं मिल रहा था, किसका 1 है 2 है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस वहां पे नहीं मिल रहा था। और लास्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो ऑफ करता है और हेलोजन से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक हमने जो पढ़ी वो हिस्ट्रीज थी, डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडेलीव। नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक